یہ ساری کہانی 2005 میں ایک ایسے واقعے سے شروع ہوئی جو ابتدا میں ایک بالکل معمول کی پولیس رپورٹ لگتی تھی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر پام بیچ میں ایک 14 سالہ لڑکی کے والدین پولیس کے پاس گئے اور بتایا کہ ایک دولت مند اور بااثر شخص جیفری نے ان کی بیٹی کو کیا ہے۔ پولیس نے شکایت درج کر اور جب پولیس نے جیفری کے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے کم عمر لڑکیوں کی تصاویر برآمد ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک عام سا کیس ایک سنگین اور انتہائی پیچیدہ کیس بننے جا رہا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں جیفری ایپسٹین کی، جسے آج کل ہم ایپسٹین فائلز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت شاید خود جیفری ایپسٹین کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی واقعہ اسے برسوں بعد جیل کی ایک بند کمرے تک لے جائے اور وہاں ایک ایسی پراسرار موت جو آج بھی معمہ بنی ہوئی۔ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہی کیس آگے چل کر امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا سیاسی درد سر بن جائے اور اس کہانی کو دبانے کے لیے طاقت، اثر و رسوخ اور نظام کی پوری قوت استعمال کی جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہمیں پیچھے جانا پڑتا ہے، جیفری ایپسٹین کی زندگی کی طرف، اس شخص کی طرف جو دولت اور تعلقات کے سہارے خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا تھا۔ ایک دور تھا جب جیفری ایپسٹین عالمی اشرافیہ میں انتہائی بااثر مانا جاتا تھا، اور وہ بھی ان پارٹیز کی بدولت جن کی میزبانی وہ اپنی گرل فرینڈ گلین میکسویل کے ہمراہ کیا کرتا تھا۔ گلین میکسویل اب بچوں کی جنسی اسمگلنگ کے جرم میں 20 سال کی سزا کاٹ رہی ہے۔ یہ پارٹیز جیفری کی 6 لگژری پراپرٹیز میں منعقد کی جاتی تھی، جن میں جیفری کا وہ گھر جو نیو یارک کا سب سے بڑا گھر سمجھا جاتا ہے اور معروف ایپسٹین آئیلینڈ شامل تھے۔ اس کے علاوہ جیفری کے پاس 4 پرائیویٹ جیٹ تھے جو اس کے ہائی پروفائل مہمانوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جن میں ایک بوئنگ 727 بھی شامل تھا جسے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا گیا۔ 2019 میں صحافی نک برائنٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ جیفری ایپسٹین کی رہائش گاہوں اور ہوائی جہازوں میں خفیہ کیمرے نصب ہیں جو کہ مبینہ طور پر اس مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ امیر اور طاقتور لوگوں کو سمجھوتا کرنے کے لیے بلیک میل کیا جا سکے۔ اگرچہ برسوں تک جیفری ایپسٹین کے حوالے سے مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں اور ٹریفکنگ کی خبریں گردش کرتی رہی، لیکن پہلی باضابطہ شکایت 2005 میں درج ہوئی جب 14 سالہ لڑکی کے والدین نے دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی نے جیفری کے گھر میں استحصال کا سامنا کیا ہے۔ اس کے بعد ایک الزام لگانے والے سامنے آتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ہائی اسکول کی طالبات تھیں جو پیسے کمانے کی آسان طریقوں اور ماڈلنگ کے لالچ میں ان چیزوں میں ملوث ہوئے۔ جیفری ایپسٹین نے ایک پرکشش زندگی گزاری۔ وہ اکثر ضمانت کی معمولی رقم ادا کر کے یا استغاثہ کے ساتھ سودے بازی کر کے مشکل سے نکل جاتا تھا۔ 2008 میں لمبی قید کی سزا کاٹنے کا سامنا کرنے کے بجائے اس نے نان پروسیکیوشن معاہدہ کیا جب اس نے ایک نابالغ کے ساتھ جنسی تعلق کا اعتراف کیا، لیکن اسے کم سزا یعنی صرف 13 ماہ قید بامشقت کی سزا۔ یہ فیصلہ اس وقت اتنا چونکا دینے والا تھا کہ اطلاعات کے مطابق اس وقت کے ایک امریکی پروسیکیوٹر الیگزینڈر کوسٹا نے کہا تھا کہ انہیں ایپسٹین کو ہلکی سزا دینے کا کہا گیا تھا کیونکہ ایپسٹین کا تعلق ایک خفیہ ایجنسی کے ساتھ تھا۔ لیکن کس ایجنسی سے؟ اس کی دولت اور طاقت میں غیر معمولی تیزی سے اضافہ اس حوالے سے اشارات دے سکتا ہے۔ اس نے کالج تک مکمل نہیں کیا تھا اور وہ نیو یارک میں مینہٹن کے ایک امیر علاقے میں ڈالٹن اسکول نامی نجی تعلیمی ادارے میں فزکس اور ریاضی پڑھاتا۔ یہاں اس نے کسی طرح سرمایہ کاری بینک بیئر کے سربراہ ایلن گرینبرگ کی توجہ حاصل کی، جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر جیفری ایپسٹین سے بہت زیادہ حد تک متاثر تھے۔ انہوں نے جیفری کو اپنی کمپنی میں ملازمت دی، حالانکہ جیفری کو فائنانس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ سابق اسرائیلی جاسوس ایوی میناش نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایپسٹین اور اس کی گرل فرینڈ نے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کیا اور وہ ممتاز افراد کو بلیک میل کرنے کے لیے ہنی ٹریپس بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کے مالک رابرٹ میکسویل، جو گلین میکسویل کے والد بھی ہیں اور ایک بدنام فائنانسر کے طور پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے اس کام کے لیے جیفری ایپسٹین کو بھرتی کیا۔ جیفری ایپسٹین کی طرح رابرٹ میکسویل کی بھی 1991 میں پراسرار حالات میں موت ہوئی تھی، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اس نے بھی خودکشی کی ہوگی۔ اس کہانی کی یہ واحد خودکشی نہیں ہے۔ ایپسٹین پر الزام لگانے والی جوفرے حال ہی میں اپنے گھر میں مردہ پائی گئی، جس کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وکٹوریا نے 2019 میں ٹویٹ کیا تھا کہ میں عوامی طور پر بتا رہی ہوں کہ میں کسی بھی صورت میں خودکشی نہیں کر رہی۔ بہت سارے برے لوگ مجھے خاموش دیکھنا چاہتے ہیں۔ جوفرے کی موت کے 3 سال بعد جین لک برونیل، جو اس کیس سے منسلک ایک فرانسیسی ماڈل ہے، ان کی جیل کے کمرے میں پھندا لگی لاش ملی جسے مبینہ طور پر خودکشی قرار دیا۔ جہاں تک ایپسٹین کا تعلق ہے تو یہ بات دلچسپ ہے کہ اس کی موت کے دن جیل کے کمرے کے باہر موجود دونوں گارڈ سو رہے تھے۔ اس کے کمرے کا ساتھی ایک دن پہلے ہی وہاں سے چلا گیا تھا اور CCTV فوٹیج میں پورا 1 منٹ غائب۔
ये मामूली कोताही ही नहीं बल्कि एक ऐसा पुरस्कार मंजर है जिसने पूरे केस के गिर्द सवालिया निशान मजीद गहरा कर दिया। और अब इसी पुरस्कारियत के बीच एप्स्टीन के नाम से जारी होने वाली हजारों सफ़हात पर मुश्तमिल सरकारी दस्तावेजात सामने आए जो न सिर्फ एप्स्टीन के जराइम बल्कि उसके ताल्लुकात, खुफिया मुलाकातों और ताकतवर हलकों में मुमकिना किरदार को बेनकाब कर दी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं और उनमें क्या कुछ मौजूद है। एप्स्टीन फाइल्स वो हजारों दस्तावेजात हैं जो FBI और वफाकी प्रोसिक्यूटर्स के पास 2019 से मौजूद थी। ये फाइल्स एप्स्टीन के नेटवर्क, उसके जराइम और उसके ताल्लुकात की तफसीलात पेश करती हैं। उनमें ईमेल्स, निजी जहाज के प्रवाजों के रिकॉर्ड्स, 95,000 से ज्यादा तस्वीरें, जेल में उसकी मौत से मुताल्लिक वीडियोस, मुतासरा खवातीन के इंटरव्यूज, लिटिल सेनेट चैम्बर्स जजीरे के रिकॉर्ड्स, गिलेन मैक्सवेल की रिकॉर्डिंग्स और साबिक मुलाजमीन की शहादतें शामिल हैं। नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को ट्रंप ने कानून में तब्दील किया, जिससे DOJ को ये फाइल्स अवाम के लिए खोलने के लिए पाबंद बनाया। फरवरी 2025 में पहली फाइल्स अवाम के लिए दस्तयाब हुई। अगरचे ज्यादातर पहले से अवामी दस्तावेजात थीं, सितंबर 2025 में हाउस ओवरसाइट कमेटी ने 33,295 सफ़हात पब्लिक किए, मगर उनमें 97% पहले से ही अवामी मवाद था। 19 दिसंबर 2025 को DOJ ने बड़ी तादाद में फाइल्स खोली, जिनमें 19 नई तस्वीरें, बिल क्लिंटन और मैक्सवेल के साथ एप्स्टीन की तस्वीर, 1996 की मारिया फार्मर की शिकायत और मुतअद्दिद ईमेल्स भी शामिल थी। यहाँ पर एक और बात बहुत दिलचस्प है कि सबके बावजूद बहुत सी अहम फाइल्स अब भी खुफिया हैं। लिटिल सेनेट जैमर जजीरे का लॉग बुक, मैक्सवेल की फोन रिकॉर्डिंग्स, 40 कंप्यूटर और 26 स्टोरेज ड्राइव्स, जिनमें तकरीबन 300 गीगाबाइट का डाटा मौजूद है। जजीरे पर जाने वाले अहम लोगों की तफसीलात, नकद रकम, हाथ से लिखे गए खुतूत और 10,000 से जायद गैर कानूनी बच्चों की तस्वीर अब भी आवाम के लिए दस्तयाब नहीं है। हाल ही में रिलीज होने वाली एप्स्टीन फाइल से कुछ नई मालूमात भी सामने आई। ईमेल्स में एप्स्टीन ने कहा कि ट्रंप लड़कियों के बारे में जानते हैं। तस्वीरों में बिल क्लिंटन एक पोल में एप्स्टीन के साथ वुडी एलन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन के साथ दिखाई देते हैं। लॉग बुक्स और कस्टमर रिकॉर्ड से कुछ नई तफसीलात भी सामने आई। और मारिया फार्मर की 1996 की शिकायत से मालूम हुआ कि एप्स्टीन तकरीबन 25 साल से ये गैर कानूनी कारोबार चला रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक मजीद दस्तावेजात आइंदा 2 हफ्तों में जारी हुई, मगर इब्तिदाई जायजे ने ही सियासी और मुआशरती हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आया इन फाइल्स में सदर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किस हद तक मौजूद हो। 1990 और 2000 की दिहाई के अवाइल में ट्रंप और एप्स्टीन के ताल्लुकात थे, मगर ट्रंप का कहना है कि ये ताल्लुकात 2000 की दिहाई के वस्त में ही खत्म हो गए थे, जो 2008 में एप्स्टीन की पहली सजा से पहले की बात है। इसी पस मंजर में जुमे को जारी की गई दस्तावेजात में ट्रंप के हवाले से मवाद की कमी नुमाया रही। रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात में ट्रंप की तस्वीर या उनका जिक्र बहुत कम पाया गया है। एक तस्वीर में एप्स्टीन को एक ऐसा चेक पकड़े दिखाया गया है जिस पर ट्रंप दर्ज था, जबकि एक और तस्वीर एप्स्टीन के घर के अंदर की है, जहां किताबों की अलमारी में ट्रंप की 1997 में शाया होने वाली किताब ट्रंप द आर्ट ऑफ द कमबैक रखी नजर आती है। ट्रंप का नाम उन फ्लाइट मैनिफेस्टोस में भी सामने आया है जो एप्स्टीन के निजी तैयारे के मुसाफिरों की फहरिस्तों पर शामिल थे, और ये मवाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फरवरी में जारी किया। इसके अलावा ट्रंप और उनके खानदान के बाज अफराद के नाम एप्स्टीन की कॉन्टैक्ट बुक में भी शामिल थे, जो 2021 में गिलेन मैक्सवेल के मुकदमे के दौरान मंजर आम पर आई थी। मैक्सवेल जो एप्स्टीन की साबिक साथी थी, उनको बच्चों की और दीगर जराइम में मुजरिम करार दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल इस बात की तरदीद करते रहे हैं कि उनका एप्स्टीन के जराइम से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बरअक्स जारी करदा दस्तावेजात में साबिक डेमोक्रेटिक सदर बिल क्लिंटन के हवाले से खासा मवाद मौजूद है। दस्तावेजात में बिल क्लिंटन की मुतअद्दिद तस्वीर शामिल है, जिनमें एक तस्वीर उन्हें मैक्सवेल और एक नामालूम शख्स के साथ स्विमिंग पूल में भी दिखाती है। दीगर तस्वीर में बिल क्लिंटन को हॉट टब में देखा गया है, जबकि एक तस्वीर में एक नौजवान खातून उनकी कुर्सी के बाजू पर बैठी नजर आती है और उसका बाजू बिल क्लिंटन के कंधों के गिर्द है। ताहम खातून का चेहरा स्याह करके छुपा दिया गया है। एक और तस्वीर में एप्स्टीन के न्यूयॉर्क के घर में लगी एक पेंटिंग दिखाई गई है, जिसमें बिल क्लिंटन को नीले लिबास में दिखाया गया है। बिल क्लिंटन के मुतालिक तस्वीर की रिलीज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इस पॉलिसी से मुतसादिम नजर आती है, जिसके तहत जारी तहकीकात से मुतल्लिक मवाद को शाया नहीं किया जाता।
ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बिल क्लिंटन के एप्स्टीन से ताल्लुकात की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिस पर नाकिदीन का कहना है कि उसका मकसद अपनी जात से तवज्जो हटाना है। बिल क्लिंटन ने भी इस बात की तरदीद की है कि उन्हें एप्स्टीन के जराइम का इल्म था, हालांकि वो इसके साथ मेल जोल और सफर कर चुके हैं। बिल क्लिंटन का कहना था कि काश वो कभी एप्स्टीन से ना मिलते। उनके नायब चीफ ऑफ स्टाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए तस्वीर को 20 साल से जायद पुरानी धुंधली तस्वीर करार दी और कहा कि बिल क्लिंटन को एप्स्टीन के जराइम का कोई इल्म नहीं। उनके मुताबिक ये मामला बिल क्लिंटन के बारे में नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के नायब अटॉर्नी जनरल ने कांग्रेस को लिखे गए एक खत में बताया कि दस्तावेजात के तफसीली और जामे जायजे के दौरान एप्स्टीन के 1200 से जायद मुतासिरीन और उनके रिश्तेदारों की निशानदही की गई है। दस्तावेजात में एप्स्टीन की मसाज करने वाली खवातीन की एक फहरिस्त भी शामिल है, जिसमें 254 नाम, ताहम तमाम नाम स्याह करके छुपा दिए गए। ब्लानिश के मुताबिक जुमे को जारी की जाने वाली फाइल्स में FBI की 2006 और 2018 की एप्स्टीन तहकीकात और 2019 में उसकी मौत से मुतल्लिक तहकीकात का मवाद भी शामिल है। ताहम जारी करदा दस्तावेजात में बड़े पैमाने पर मवाद को स्याह किया गया है। 119 सफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट जो बज़ाहिर ग्रैंड जूरी की गवाही पर मुश्तमिल थी, मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट है। इसके अलावा 100 सफ़ात की 3 मजीद डॉक्यूमेंट भी मुकम्मल तौर पर स्याह कर दी गई। इस सूरत हाल पर कई डेमोक्रेट्स ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कांग्रेस के नवंबर में मंजूर किए गए कानून, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए थे, के तहत मुकर्ररा डेडलाइन तक तमाम फाइल्स जारी करने में नाकाम रहा है। डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी से मुतालबा किया है कि वो कांग्रेस के सामने पेश होकर वजाहत दें कि तमाम फाइल्स क्यों जारी नहीं की गई। सेनेट में डेमोक्रेट्स के सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि आज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जानिब से जारी की गई ये शदीद तौर पर स्याहशुदा दस्तावेजात मजमूई शवाहिद का महज एक छोटा सा हिस्सा है। एप्स्टीन फाइल्स में जिन अफराद के नाम सामने आए हैं, उनमें से कई पर इस केस के हवाले से कभी कोई इल्जामात नहीं लगाए गए और मुतअद्दिद अफराद इस इल्जाम की तरदीद भी करते रहे हैं कि वो एप्स्टीन के साथ इसके जुर्म में कभी शामिल नहीं रहे। इन मशहूर शख्सियात की फहरिस्त को जेफरी एप्स्टीन लिस्ट का नाम दिया गया है। इस फहरिस्त में शामिल काबिल जिक्र अफराद में फ्रांसीसी मॉडलिंग एजेंट ज़ान-लुक ब्रानेल शामिल हैं, जिन पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम था, मगर उन्होंने ट्रायल से कबल ही जेल में खुदकुशी कर ली। अमेरिकी कारोबारी शख्सियत लेस्ली वेक्सनर का नाम भी दस्तावेजात में सरसरी तौर पर मिलता है, जिन्होंने मुकदमात के बाद एप्स्टीन से ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। हार्वर्ड के साबिक प्रोफेसर एलन पर भी वर्जीनिया जोफ्रे ने इल्जाम लगाया था, ताहम बाद में इसे गलत फहमी करार देकर वापस ले लिया गया था। बरतानिया के प्रिंस एंड्रयू भी इन अफराद में शामिल हैं, जिन पर जोफ्रे ने बराह रास्त जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद किया है। सियासी शख्सियात के हवाले से दस्तावेजात में साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का तस्करा मिलता है। एक मुतासरा खातून के मुताबिक एप्स्टीन ने उनकी मौजूदगी में क्लिंटन की पसंद के बारे में मुतनाज़ रिमार्क्स दिए थे, ताहम क्लिंटन पर बाकायदा कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। इसी तरह मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र भी इन दस्तावेजात में मौजूद है, लेकिन उन पर भी इस केस से मुतल्लिक कोई इल्जाम आयद नहीं। मारूफ बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का नाम भी एक ईमेल में सामने आया, जहां एप्स्टीन ने उनके मुतालिक एक दावे को झूठा साबित करने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया था। फहरिस्त में अमेरिकी करोड़पति गिलेन डेबलन, साबिक अमेरिकी सफीर बिल रिचर्डसन और साबिक अमेरिकी सेनेटर जॉर्ज मिशेल के नाम भी शामिल हैं, जिन पर जोफ्रे ने इल्जामात लगाए थे, मगर उन तमाम शख्सियात ने उनकी तरदीद की। इसके अलावा अमेरिकी गुलकार माइकल जैक्सन और जादूगर डेविड कॉपरफील्ड के नामों का तस्करा भी इन दस्तावेजात में मिलता है, ताहम उन पर भी किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक बड़े, पेचीदा और ताकतवर निजाम की अक्कासी करती है, जहां दौलत, असलो रसूख और सियासी ताल्लुकात कानूनी अमल और इंसाफ के रास्ते पर असरअंदाज होते हैं। जेफरी एप्स्टीन का केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब इतनी बड़ी ताकतें और वसाइल एक फर्द के गिर्द मुर्तकिज हों, तो कानून और समाजी ज़वाबित किस हद तक मौसर रह जाते हैं। ये सवाल अब भी जिंदा है कि एप्स्टीन के जराइम के बावजूद उसे बरसों तक तहफ़्फ़ुज़ क्यों मिला। कौन सा किरदार और कौन सी ताकतें इस निज़ाम के अंदर उसकी सरकशी की जमानत परी। एप्स्टीन की मौत ने बहुत से राज दफन कर दिए, मगर एप्स्टीन फाइल्स ने उन धुंधले नकूश को खोल दिया है जो माशरती और सियासी सतह पर बड़ी हलचल मचा सकते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि इंसाफ का निज़ाम इतनी ताकतवर शख्सियात के सामने किस हद तक मुस्तहकम है। क्या ये केस सिर्फ एक संगीन फर्दी जुर्म का सबूत है, या ये एक इंतबाह है कि किस तरह दुनिया के आला तबके की सरगर्मियां अक्सर आम नज़र से पोशीदा रहती हैं। और आखिर में, क्या मुआशरा और कानून इन मजलूम अफराद के हक में खड़े हो सकते हैं जिनकी जिंदगी और इज्जत इस ताकतवर नेटवर्क की भींच है।